میڈم امر سے تو میں گزارش کرنا تو بچے میرے کیا رزاق very mehrbani. I did a look at soccer and you are the what they come out right here. اصل میں بہت بہت شکریہ خاص طور پہ فکری فورم جی شکر گزار آیا ان والے سان بت خاص طور پہ جے وقت سماج کے اندر سماج میں وجود بلکہ چھڑوائیں وجود بسا کے اگوانی کریں لگن ان وقت ضرورت محسوس تھی دیا تو جو حقیقی طور پر ان فکری طرح سے گواہی کی رکھتے رکھجے این سمجھائی جے ایکچولی کوشش تو میں نے یہ کی کہ میں لکھ کر لاؤں کہ کافی چیزیں ہیں کہ وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ میرا یہ لکھا ہوا ابھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور کہنا یہ چاہ رہی تھی اس سے شروع کرنے سے پہلے کہ اس وقت جس ہم صورتحال کا شکار ہے اس صورتحال کے اندر اس قسم کے فکری نشستوں کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت جس معاشرے جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہ سماج دراصل فکری سطح پر کسی سیاسی تنظیموں گورنوں فائٹر کے بجائے ایک پرتشدد ہجوم کی طرف سے سماج کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا جو بظاہر یہ ہجوم آپ کو متحرک نظر آ رہا ہے یہ متحرک نہیں یہ دراصل سماج کو ایک پیچھے کی جانب لے کے جا رہا ہے اور یقیناً جب سماج پچھلے پاؤں پہ چلنے لگے تو ہم جیسے لوگوں کا بلکہ میں تو اس راہ میں کہتی ہوں کہ میں خود طالب علم ہوں لیکن کچھ لوگوں کا جو فکری طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوں گے ان کا کردار ان کا رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلائیں سماج ہمارا کیا فیصلہ کرتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن کم از کم جب ہمارے باپ کی بھی تاریخ لکھی جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ مکمل خاموشی تھی چند آوازیں وہ چند ہی ہو سکتا ہے کہ وہ سماج کو آگے بھی لے جائیں یا ہو سکتا ہے نہ بھی لے جانے میں کامیاب ہو مگر یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ پورا سماج خاموش تھا اس لیے ہمارا بولنا ضروری ہے اس کتاب کا میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ مجھے اس کا بدقسمتی کے ساتھ کہ میں نے اس میں آخری والے جو ہے 2 چیپٹر جو ہے وہ میں پڑھ نہیں سکی ہوں تفصیل کے ساتھ کہ اس کا جائزہ لے سکوں میرے لیے 2-3 چیپٹر جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے سماجی جو ڈھانچہ ہے اور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کیا تجزیہ ممکن ہے ہم آگے کس طرح سے جا سکتے ہیں تو یہ مارکس کی فیورباک کے لیے ہی لکھے گئے اس جملے سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کہ فلسفیوں نے آج تک دنیا کی تشریح کی ہے اور اصل بات تو ان کو تبدیل کرنا ہے مگر یہاں مشکل کچھ یہ بھی درپیش کہ اس خطے میں جس میں ہم رہے ہیں ایسے فلسفی اور ایسے تجزیہ نگار بھی کہاں میسر تھے کہ کم از کم اس خطے کی تشریح میں ناکامی ہو جاتا
समाज से जुड़े हुए मगर तारीख़ और फ़लसफ़े के शागिर्द ने हमेशा तारीख़ को ज़माने माज़ी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल के अलग अलग खानों या टुकड़ों में देखने की बजाय हरदम उस रब्त बाहम को समझने की कोशिश की है जो अमल इंसानी से जुड़ा हुआ अमल इंसानी से जुड़े हुए उस शऊर और आगाही के अमल का आगाज़ है। और मेरा ख्याल है कि यही शऊर और अमल की आगाही है जो आगे सिर्फ रास्ता और आगे सिर्फ देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए नुक्ता निगाह नहीं बताती, लेकिन ये आगाही दरअसल खुद गुलामी से निजात का दहिंदा भी बनती है कि सिर्फ देखना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ रूप ऐसे हैं जो हमें समझाते हैं, वो सिर्फ उलूम की हद तक है। लेकिन हम जब मार्क्सी तनाज़ुर में बात करते हैं, ख़ास तौर पर तारीख़ के हवाले से, तो वो मार्क्सी तनाज़ुर सिर्फ इल्म नहीं बनता, वो खुद निजात बनता है कि मार्क्सी फ़िक्र निजात के बगैर उसका तसम्मुर मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए मार्क्सी फ़िक्र के तनाज़ुर में तारीख़ को देखना और तारीख़ को की जुज़ियात को किसी और नुक्ता निगाह से देखना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए भी ये तारीख़ हमारे लिए अहम बनती है कि ये तारीख़ जब हम मार्क्सी तनाज़ुर में देखते हैं, समझते हैं, तो वो सिर्फ इल्म नहीं होती, वो निजात का रास्ता भी बनती है। इसलिए यूँ मार्क्सी फ़िक्र तारीख़ में कभी भी इर्रिलेवेंट नहीं बनता। हम कभी भी नहीं कह सकते कि इसका दौर गुज़र चुका। ये कभी भी इर्रिलेवेंट नहीं बनता कि ये सिर्फ नुक्ता निगाह नहीं, सिर्फ मकतबा फ़िक्र नहीं, सिर्फ रास्ता, सिर्फ मेथोडोलॉजी, सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं, लेकिन मेरी नज़र में मार्क्सी फ़िक्र खुद निजात है। हिंदुस्तान की तारीख़ देखें, हिंदुस्तान की तारीख़ कहाँ से शुरू करें कि हिंदुस्तान की तारीख़ का हम भी हिस्सा है, बगैर इसके कि सरहदों की तारीख़ कुछ और होगी, लेकिन खित्ते की तारीख़ कुछ और है। खित्ते के अंदर मौजूद समाज, समाजी रिश्तों और दीगर चीज़ों को देखें तो ये तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ है, ये सिंध की तारीख़ है, ये इस खित्ते की तारीख़ है। तो मेरा ख्याल है अगर उस तनाज़ुर में भी देखें तो बात को न सिर्फ समझने में आसानी होगी, लेकिन बात को मेरा ख्याल ये है कि हमारी अपनी निजात के लिए ये रास्ता कैसे बनेगी, ये बात करने में भी आसानी होगी कि हिंदुस्तान की तारीख़ इस फ़िक्री नज़र से पहले, इस तारीख़ी तथ्य से पहले बज़ाहिर देवमालाई मज़हबी तर्ज़ फ़िक्र की तबीज़ताओं में छुपी हुई, मगर ये खुशकिस्मती है हिंदुस्तान की कि उनके नसीब में कुछ ऐसे तारीख़दान आए, डी कोसंबी से लेकर इरफान हबीब तक, कि उन्होंने न सिर्फ इन मज़ाहिब के, इन देवमालाई असातीर के तहों में छुपी हुई तारीख़ को उजागर किया, लेकिन हकीकी तौर पर उन्होंने समाज का एक कुल्ली नज़रिया, उसको टोटलिटी के अंदर न सिर्फ देखा
ان تمام رشتوں کی وضاحت کرتے ہوئے تاریخ کے تمام مراحل کی انہوں نے تشریح کی ہے. اور یہاں ہم کہ ہمارے حصے میں کوئی ڈی ڈی کوسمی بھی نہیں آیا, کوئی عرفان ابھی بھی شاید ہو, لیکن ہمارے حصے میں آیا تو مطالعہ پاکستان آیا. اور ہمارے حصے میں جو تاریخ آئی بدقسمتی سے وہ تاریخ محمد بن قاسم سے شروع ہوئی. اور محمد بن قاسم سے پہلے کی تاریخ, ہماری جڑوں کی تاریخ, ہمارے خطے کی تاریخ اور ہماری سماجی ڈھانچے کی تاریخ, اس پہ ایک نگاہ ڈالنا بھی اس طرح شجر ممنوع کہ وہ ہمارے لیے مطالعہ پاکستان کے طالب علموں کے لیے اور مطالعہ پاکستان کے زیر اثر رہنے والی اقوام کے لیے وہ ابھی تک تاریخ دور ہے, جس سے ہم نے کیا کرنا ہے. خیر, تو تاریخ سے نابل اس خطے میں مطالعہ پاکستان نے جن ذہنی مریضوں کا اضافہ کیا, اس کی شکل اب یہ نظر آتی ہے جو آپ کو بپھرے ہوئے جو سڑکوں پہ کسی نہ کسی کو مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہر دوسرے دن اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی مطالعہ پاکستان کا حتمی نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے اتنے سالوں کے بعد. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کسی بھی قوم کی اسی طرح یادداشت ہے, ایک اجتماعی یادداشت ہے, اور نفسیات کی تاریخ کہتی ہے, انسان کی سمجھنے کی تاریخ کہتی ہے کہ اگر یادداشت گم ہو جائے کسی انسان کی کہ وہ ماضی, حال اور مستقبل میں کوئی ربط پیدا نہ کر سکے کسی بات میں, اس کی یادداشت گم ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلینکل ہے, اس کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کی یادداشت غائب کر دی جائے, اس کی تاریخ گم کر دی جائے, تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی یہی اجتماعی پاگل پن ہو سکتا ہے جس کا ہم شکار ہیں. ہندوستان کے مورخ نے البتہ ہندوستان کی یادداشت کو دیومالائی مذہبیت اور سماج کے مختلف پرتوں سے اوہام اور عقیدے پرستی کے طبی استحاق کو ہٹا کر تاریخ کو شعور کے ڈھانچے میں رکھ کر اس کا اصل چہرہ نرواہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صرف اور صرف مارکسی فکر اس کی سائنسی طریقہ کار جو تاریخ کو دیکھنے کا تھا اس نے مدد کی. زین بحث کتاب ہندوستانی تاریخ مارکسی تناظر میں اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ بھی دراصل وہ بنیادی یا اساسی بنیاد فراہم کرتی ہے جس کی مدد سے ہندوستانی اپنی اصل شکل میں سامنے آئی. مگر ابھی بھی اس عوام کو درست کرنے میں جہاں بہت سارے نام آتے ہیں وہاں عرفان حبیب کا نام اس اہم ہے
मैं डीडी कोसंबी को नहीं भूलूंगी कि जब मैं ख़ुद पढ़ने यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने उस्ताद ने, फ़लसफ़े के उस्ताद ने तारीख़ पर जो मुझे पहली किताबें पढ़ने के लिए दी, साईं फरीदुद्दीन शेख साहब, जावेद भुट्टो, बाटी गादा, तो वो डीडी कोसंबी को मुतारिफ़ करवाया, इरफान हबीब को मुतारिफ़ करवाया और तमाम ख़ास तौर पर इस फ़िक्र से आगाही दी कि चीज़ों को देखा कैसे जाए, चीज़ों को समझा कैसे जाए, चीज़ों को परखा कैसे जाए। इसलिए कि तारीख़ महकूमों के लिए, गुलामदारी समाज के लिए सिर्फ जानने का अमल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का नहीं, ही महकूमी का निजात जो एक ज़रियो पर शर्त है, वह शर्त है तो तारीख़ के सिर्फ सियासी वाक़िअनि जी के बुनियाद न बनाए वञे, सिर्फ सियासी वाक़ियात को, सिर्फ उसकी तफसीलात ना हो। ये तारीख़ समाज का वो कुल है, तारीख़ वो कुल पेश कंदी आहे जंहिंमें हर जुज़ो वो सियासत मईशत से आगे जाती है। तो मज़ाहिब हो, आर्कियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी, इरीगेशन, तो ही किताब दरअसल जेकॾहिं पढ़िजे तो ही अवाइली दौर खां वठी तारीख़ जो जेको अवाइली जिन हिस्सनि में तक़सीम कजे थी उन खां वठी ही आख़िर ताईं जेका बरतानिया जी इस्तेमारियत रही आहे उन ताईं हिकिड़ो तफ़सील त उन जा घणा थी सघनि था, पर उन जो हिकिड़ो बहितरीनु माख़ज़ आहे। उन में मूं जेको घणी दिलचस्पी सां पढ़ियो उहो जंहिंजा असर आहिनि सिंधी समाज ते, जंहिंजे लाइ मां सम्झां थी ख़ासि तौर पर कि सिंधी समाज को दोबारा से इस तजज़िये की ज़रूरत है और बार बार ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा रेफरेंस इसमें जब गंगा तास का और फिर सिंधु तास का ज़िक्र आता है, इंडस सिविलाइजेशन जो ज़िक्र अचे तो उनमें घट में घट हिन किताब के अंदर डिटेल्स इस तरह मौजूद इन सेंस में तो ज़रूर हूंदा जेके कंपेरिजन करे असां गंगा जी तहज़ीब के उनके ॾिसी सघूं तो कहिड़ा सबब हुआ तो गंगा जी तहज़ीब जेका सिंधु तास खां न को पुरानी न आहे पर उन उहा अॻिते वधे थी। ऐं मुंहिंजो सवाल इहो आहे जेॾी महिल तारीख़ खणंदे अवाइली तारीख़ आहे, अवाइली तारीख़ खणंदे इरफान हबीब जेॾी महिल लिखे थो, बयान करे थो त इब्तिदाई ज़रई दौर जे अंदरि जॾहिं ज़मीननि खे ही जेके जंग आहे ही कटे जेॾी महिल उनखे ज़रई कास्ट जी कापन बनायो पियो हूंदो तेॾी महिल ही जेके असां अॼोके दौर में हारी चऊं, किसान चऊं, उन जा हुते कहिड़ा तबिका ठहिया, उन में गंगा जी जेका तहज़ीब आहे न रुगो तबिकनि जे अंदरि हारी तबिको पर ख़ुदि हारियुनि जे अंदरि जेके असां अॼोके दौर में चऊं था त डेली वेजिस वारो, बेज़मीन हारी, ज़मीनदार हारी, शिराकतदार हारी ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं कैटेगरीज़ आहिनि उहे ॾिनल आहिनि। मूंखे पाकिस्तान जे पर्सपेक्टिव में हिकिड़ो यादि अचे थो हमज़ा अरबी साहब, हमज़ा अरबी जी जॾहिं जागीरदारी आहे उन जे जेका असां पर्सपेक्टिव में जेका तहक़ीक़ थियनि आहे उहा तहक़ीक़ घणे भाङे इन खे अॻिते वधाए थी
पर उनखां पोइ मूंखे को ॾाढो नज़र नथो अचे। तैमूर साहब आप जानते होंगे निगत सईद खान, उन्होंने भी उसका भी जो रिसर्च है उसकी रिसर्च भी दरअसल किसानों के अंदर मौजूद तबकात के कौन सा तबका इनकलाब के लिए, किसान के अंदर कौन सा तबका इनकलाब के लिए मौसर हो सकता है, और उनकी रिसर्च भी चूँकि छपी नहीं इसलिए वो ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आ सकी, लेकिन जिस तरह मेरे पास उसकी कॉपी है तो मैं समझती हूँ कि आपके पास भी उसकी कॉपी ज़रूर होगी। तो उसके बाद से हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। मैंने पाकिस्तान में स्पेशली सिंध के पर्सपेक्टिव में जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त इन क़िस्म जी ॻाल्हि मूंखे नज़र नथी अचे। ऐं उहा छो ज़रूरी आहे, छाकाणि त विंसेंट पिचिस में एक इसकी इरफान हबीब की एक और दूसरी बात है, और दुनिया के अंदर भी लिखा गया है। इसमें जब मैंने पढ़ा उसकी तफसील में भी, और खुद ने भी एडमिट किया है कि उसने न सिर्फ मार्क्सी तनाज़ुर में इसको देखा है, लेकिन मार्क्स के बाद जो मुख्तलिफ फ्रेंच जो है फ़लसफ़ियों की जो ये पोस्ट मॉडर्निज़म आ गया, आपके पास सबल्टेरियन स्टडीज़ आ गई, इनकी रिसर्च में उनसे भी इस्तेफादा किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको टोटल ने रिजेक्ट किया गया है। ये पीपल्स हिस्ट्री के दस में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बिट्स एंड पिचेस में असां वटि मुख्तलिफ शयूं ज़रूर मौजूद आहिनि। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास हम लोगों ने या हमारे पास काम नहीं होगा। बिट्स और पिचेस में पीपल्स हिस्ट्री में मिसाल के तौर ते पंहिंजो असलम ख्वाजा जी जेका एक किताब आ, लेकिन वह भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो वाक़यात का मजमूआ तो है कि छोटी छोटी इहो बि चवणु माना ग़लति थींदो जी, हिन में बि जेको आहे सो हिकिड़ो पहिरें ई हुन में चयल आहे त जेॾी महिल यूरोप जो रिसर्चर, यूरोप जो माण्हू जेॾी महिल हिंदुस्तान जे बारे में ॻाल्हाए थो, हिंदुस्तान जे ख़ासि तौर ते किसाननि जी ऐं हुनजी, त उनखे भेटे थो यूरोपी समाज जे फ्यूडलिज़म सां, ऐं बार बार उहो सवाल उथारे थो त आख़िर हिंदुस्तान जे अंदरि ही जेके तहरीकूं आहिनि, ख़ासि तौर ते किसाननि जेका सा हिननि जूं हारियुनि जूं तहरीकूं, छा उन्हनि कॾहिं ठीकु आहे संज थोरो जेकॾहिं मूंखे इजाज़त ॾियो थोरो मिसाल जे तौर ते इन ॾाढो ज़बरदस्ती हिकिड़ी जेका असां लिखियो आहे त बार बार इहो सवाल आहे त हू सवाल पुछनि था त छा इहा मज़ाहिमत, छा इहा स्ट्रगल, छा इहो सवाल माना छो इहो सवाल हिंदुस्तान जे हारियुनि वटां न आयो आहे। मिसाल पोइ उनजो जवाब पाण ॾिए थो त हम जिन नारों की तलाश के लिए उम्मीद लिए हुए हैं, हो सकता है वो कभी लगाए ना गए हो, लेकिन सादे वक्त पे हो सकता है कि उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई हो, लेकिन चूंकि वो उसको समझने से कासिर है, उसकी तनाजुर को समझने से कासिर है, इसलिए उनका मुशाहिदा नहीं कर सकता, उसका तज्जिया भी नहीं कर सकता। यही बात मैं अगर ख़ास तौर पे सिंध के रेफरेंस में करूँ कि सिंध को आज तक जो भी रिसर्चर मिला है कि सिंध की अभी भी जगह तारीख़ छा में आहे फ़ारसी में, इहो चचनामे खां पोइ जेका असां हुनजी लिखी वई आहे इन पंहिंजो केरु आहे लाहौर जो, लेकिन अभी तक वो तारीख भी हमारे पास ऐसे सच मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं अॼु ॾींहुं ताईं त इहे आवाज़ हूंदा न हूंदा। इहे जेके असां चऊं था त धिकारियल तबका आहिनि, ख़ासि तौर ते हारियुनि में मज़ाहिमत मौजूदु रही आहे या न रही आहे, मार्जिनलाइज़ तबकनि जी मज़ाहिमत मौजूदु आहे या न आहे, उनजो वॾो सबबु इहो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि ऐं ख़ुदि सिंध सां बदकिस्मती इहा आहे त 5000 साल पुराणी
तहज़ीब जे बावजूदि जितां चऊं था इन जी इब्तिदादी आहे कि इन जी ॿोलीअ खे सम्झण जी कोशिश ई न कई आहे। ॿाहिरियों रिसर्चर ख़ासि तौर पे जब बाहर का रिसर्चर अरब दुनिया के अंदर जाता है तो अरबी सीखता है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर जाता है तो हिंदी सीखने की कोशिश करता है कुछ न कुछ, ताकि उसके जिस तरह से इरफान हबीब के पास जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसके पास प्राइमरी सोर्स अवेलेबल है, और प्राइमरी सोर्स चूँकि अपनी ज़बानों के अंदर मौजूद होता है। आर्कियोलॉजी तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब जब तक हम डिकोड नहीं कर सकते मोहनजोदड़ो की ज़बान, तब तक हम कुछ कहने से कासिर है। लेकिन अब भी जो ज़बान मौजूद है जिस तो उन हारिए जी ऐं उन जी ॿोली असांजो रिसर्चर सिखण खां कासिर आहे। ख़ासि तौर ते उहे जेको वेल इक्विप्ड आहे विथ दीज टूल्स ऑफ नॉलेजिस, टूल्स ऑफ थ्योरी, उन्हनि खां जेको वेल इक्विप्ड न आहे ऐं वेल इक्विप्ड हुअण खां पोइ जेकॾहिं हिते अची पोइ रिसर्च करण में तोखे पंहिंजी ॿोली नथी सम्झी सघे, जहिड़े तरीक़े सां अरबस्तान अरब दुनिया जे अंदरि अरबी ॿोली सिखे थो, हिंदी सिखे थो, चाइना वेंदो हूंदो त उनखे चीनी सिखणी पवंदी हुजे, त मां सम्झां थी त रुॻो ॿाहिरि जो न पर ख़ुदि पाकिस्तान जे अंदरि जेका अकेडेमिया मौजूदु आहे उहा अकेडेमिया बावजूदि इन जे त उहा प्रो पीपल्स हुजे, लेकिन इस समाज की बदकिस्मती ये है कि वो अकेडेमिया जब तक अपने आप को उस खित्ते के लोगों के साथ, उनकी ज़बान के साथ, उनकी जड़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करती, उनको समझ नहीं सकती, तब तक वो पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख पेश करने से कासिर है। वो चाहे मेरे खित्ते सिंध की तारीख़ हो, चाहे ये जेको सब खां पुराणो बहरगढ़ जी तारीख़ हुजे, पख्तून जी तारीख़ हुजे, या असांजी जेका असां ॿी तारीख़ हुजे, पर मां सम्झां थी त उन जे लाइ लाज़िम आहे उहो पंहिंजे पाण खे उन सां जोड़े, पर गॾोगॾु जेका प्राइमरी सोर्स मौजूदु आहे, प्राइमरी सोर्स अदब जी शक्ल में मौजूदु आहे, फोर्ट लिटरेचर जी सूरत में मौजूदु आहे, उहो डॉक्यूमेंट्स जी सूरत में मौजूदु आहे, उहो आर्कियोलॉजी जी सूरत में मौजूदु आहे, छाकाणि त इन जा इरफान हबीब के बुनियादी माखज़ क्या है, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। जब हम तो प्राइमरी सोर्स के बजाय जिस तरह से इसने मार्क्स का भी जिक्र किया है कि मार्क्स ने जब तक हैगिल से हिंदुस्तान को हैगिल की जेका लिखणनि मां हिंदुस्तान के सम्झण जी कोशिशि कयई त हिंदुस्तान के न सही सम्झी सघियो, जेसि ताईं उनखे पंहिंजे लेखे में सम्झण जी कोशिशि न कयई तेसि ताईं जे लाइ सम्झणु ॾुखियो हुयो। त हैगिलियन उन तनाज़ुर में जॾहिं मार्क्स बि ॾिसे थो तेॾी महिल उन ॻाल्हि जे तह ताईं नथो पहुचे, छाकाणि त तारीख़ ॾिसण जे लाइ, तारीख़ सम्झण जे लाइ, बल्कि मुस्तक़बिल ॾिसण जे लाइ, मुस्तक़बिल ठाहिण जे लाइ न रुॻो तारीख़ खे फलणो आहे, तारीख़ खे ॾिसणो आहे, पर तारीख़ जे लाइ हिन क़िस्म जी मार्क्सिस्ट एनालिसिस, छाकाणि कि उनखां अगरि डेवलप्ड अगरि टूल्स के नॉलेजिस में अची वञनि त मां कतई तौर ते जेका असां का ऑर्थोडॉक्स डॉगमेटिक त उन अप्रोच जो इख़्तियार न कंदसि, पर ज़रूरु चवंदसि त तेसि ताईं, छाकाणि त ही जेको फ़िक्र आहे इहो फ़िक्र मुंहिंजी नज़र में उन ग़ुलामदारी खां बि निजात आहे, उन जंहिंजो असांजो अञा तजियो सिंधी समाज तो सिंधी समाज का इस तरह से तजिया होना है, क्योंकि पाकिस्तान का तजिया भी आप इस तरह से नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अभी तक कम से कम मेरी जो दावा है, दावा ये है कि दावा मुख्तलिफ है कि कोई कहता है कि एग्रीरियन है, अभी तक जो है असांजा जेका असां पाकिस्तान जी इकॉनमी छा ते बेस करे थी, इवन जेका असां उन्हनि जे अंदरि बि जेकॾहिं थिए त अर्बन इकॉनमी चाहे, रूरल इकॉनमी चाहे, जेसि ताईं तव्हां डिवीजन जे अंदरि नथा वञो तेसि ताईं इहा घटि में घटि मां नथी मञी सघां त असां कोई हिकिड़ो ई को सल्यूशन ॾेई सघूं था जेसि ताईं जेको सभिनी ते लागू थी सघे। इन लाइ लाज़िम आहे त सिंध जे अंदरि सिंध जी मईशत खे बि उन
ज़राई जेका असां मईशत आहे ऐं उन सां गॾु जेका ॿी जेका तव्हांजी सरमाएदाराना मईशत आहे, ॿी जेका तव्हांजी जेका मईशत आहे, इन्हनि मईशत जो तव्हांखे न रुगो सम्झणो पवंदो। ऐं जेसि ताईं असां बार बार पे लिखियो आहे जेका सियासी जेका सूरत आहिनि, त ही वक़्तु मुझे ख्याल में उन एक्टिविज़म जो है जिसको हम कहते हैं कि वो रिसर्च का और तज्जिए का है, क्योंकि मेरा अभी तक ज़ाती तौर पर हो सकता है कि ये मेरी लाइन भी हो, मैं मान रही हूँ कि हो सकता है कि मेरी लाइन भी हो, लेकिन मेरी नज़र से अभी तक मैं समझती हूँ कि इस समाज का कुल्ली तौर पर इस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जे अंदर तंज़ियो में कोन थियो आहे। जॾहिं तंज़ियो न थींदो तेॾी महिल महकूम क़ौमनि, महकूम तबक़नि, महकूम जेंडर ऐं महकूम जेके ग्रोह आहिनि, मां सम्झां थी त उनजी जेका असां निजात जी ॻाल्हि करनि तेसि ताईं मुमकिन ई कान्हे। हुजूम आहे, हिकिड़े ॾींहुं उथंदो, ॿिए ॾींहुं वेहंदो, जंहिं ॾींहुं वेहंदो उन ॾींहुं वधीक मायूसी थींदी। तंहिंजे करे मां कंहिं बि एक्टिविज़म जे ख़िलाफ़ु न आहियां, पर इन हुजूम जे ज़रूरु ख़िलाफ़ु आहियां जेको बग़ैर उनखे त सिंध जो शोर घटि में घटि मां हिन हुजूम जे एक्टिविज़म खे सिंध जो शोर नथी मञां, जेसि ताईं मूंखे तज़िये जी बुनियाद ते कोन बीठल, जेसि ताईं मूं उनखां प्रिडिक्ट नथो करे सघे तूं कहिड़ा नतीजा चाहे थो। तव्हांजी वॾी महिरबानी।